Hello everyone. So today we're going to start with the factors, and we're going to start from very basic concepts like how to factorize, how to write a factors of a number, and then we're going to cover all the difficult type of question that can be asked. So basically this is going to be a session from basic to advanced level, anyone can understand. And let's get started then. First thing, how to factorize the number, how to write a prime factorization form of a number. Let's take an example like 36. So in your lower classes you might have learned this thing, that like this is the way to write the prime factorization form of any number. So like 36 can be written as, the prime factorization form of 36 is this one. You might have learned in your lower classes, but for like competitive examinations like CAT, you cannot use these methods because this will take time for the bigger number. So you need a faster approach to solve this type of question. So we're gonna see like how we can factorize numbers faster. So let me just tell you a few things that will be needed. So you already know the divisibility rule of 2, 4, 8, and you also know the divisibility rule of 3, 9. You also know the divisibility rule of 5, 25. You also know the divisibility rule of 11. So these are the divisibility rules that we'll be using. And now you'll be asking that why only these divisibility rule? Why not like you also know the divisibility rule of 7, 13, 37, 27? Why we are not using these divisibility rules? Why only 2, 4, 8, 3, 9, 5, 25, and 11? Because it is easier to check the divisibility rule of these numbers, and it is not as easier to check the divisibility rule of these numbers. So that's why you don't need these numbers. Well, you just need to know the divisibility rule of these numbers. Okay. And one more thing, just let me explain. Suppose a number is written, let's say 3600. So this is the number. So if you are writing the prime factorization of this number, so the number of zero this has will be the same number of 2's and 5. So you can see here there are 2 zeros, so there will be 2 2's at least 2 2's and 2 5. I hope you got this point. So this thing, so 2 to the 5, 2 to the power n, 5 to the power n, that will depend on number of zeros. So these two things will be using to factorize a number faster. ठीक है, किसी नंबर का प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म जल्दी लिखने के लिए विल बी यूजिंग दीज two things. So let's take a random number. Let's take a random number. Then try to factorize that number using this technique. 3960. Suppose this is the number and you want to write prime factorization form of this number. So first I will remove the 0. So that is 396 into 2 into 5. Then because there is only one 0, so 1 2 and 1 5. 396. This you can see that 6399. This is a multiple of 11. So I will remove 11 from this. That is 36 into. Now you can easily do this thing. This is 2 to the power 2 into 3 to the power 2. 11 into 2 into 5. This is the power 3, 3 square into 5. This is the prime factorization form of this number. You can say like how big number we can easily classify. We can easily write the prime factorization form of this number in this way instead of using this method. That will be a longer method. I hope now you understood how we're gonna deal with these type of things using just these things. Let's do one more number. And one more thing, you might of thinking that this is the number that have 2, 3, 5, 11. These rules are applicable. What about the numbers where कि like जहाँ पर 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 9 भी वर्क नहीं कर रहा है, 11 भी, 5 भी वर्क नहीं कर रहा है? What can we do for those type of numbers? So those type of numbers, what you can do, like first thing, first check if the number is 2, 4, 5. इनमें से अगर किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये चीज भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, then like suppose let me write some this number. Suppose this number is this divisible by, is it divisible by 3? ठीक है, लेट्स टेक, अब देखो 50% तो चांस ऐसे ही है कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा, है ना? इवन नंबर ऑड होगा या इवन होगा? तो पहली तो बात 50% चांस है कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो बहुत हाई चांसेस है कि नंबर इनमें से किसी ना किसी से मल्टीपल होगा। बट एनीवे लेट्स टेक नंबर नहीं होता, लेट्स कुछ चेंज करते हैं इसमें। लेट्स डू इट 2। लेट्स डू इट, नाउ इट इज नॉट
अब ये 3 से नहीं है, 9 से है, 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा, है ना, 5 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, ठीक है। सपोज यू लाइक ऐसा कुछ नंबर आ जाता है ना, तब क्या करना है तुम्हें, देन स्टार्ट फ्रॉम 7, यूज द कैलकुलेटर, है ना, यूज द कैलकुलेटर। अगर छोटा नंबर है यू कैन डील विथ, लाइक अगर 4 डिजिट तक नंबर है, अगर तुम 7 से कर सकते हो तो 7 से चेक करो, देन 13 से चेक करो यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। अगर बड़ा नंबर है यू कैन नॉट डील विद डिवीजन, अगर तुम खुद से डिवाइड नहीं कर सकते हो, नंबर इज बिगर, देन यूज द कैलकुलेटर। 7 से चेक करो, 13 से चेक करो, एंड देन 17 से चेक करो, 19 से चेक करो, 23 से चेक करो, 29, 31, इनमें से किसी ना किसी, एटलीस्ट किसी ना किसी से मल्टीपल होगा ही होगा। 31 से चेक करो, लाइक देन आई थिंक 37 मैक्स टू मैक्स, 41, 43, है ना। ये व्हाट आर दीज आर द प्राइम नंबर्स, है ना, किसी ना किसी का तो मल्टीपल होगा ही होगा। तो दिस इज द वे, आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो इनमें से किसी ना किसी से मल्टीपल होगा ही होगा, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेट नंबर नहीं आएगा कि इनमें से किसी से भी मल्टीपल ना हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक 31 तक आ जाता है, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा जो भी नंबर एग्जाम में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मोस्ट देखो 50% प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी नंबर इवन होगा, 2 का होगा तो आधा नंबर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। फर्दर अगर 3 और 9 हो गया और छोटा कर सकते हैं, 11 हो गया और छोटा कर सकते हैं। तो दिस इज द वे बेसिकली। आई होप यू गॉट दिस आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। फर्स्ट थिंग, ट्राई टू डील विद दीज नंबर्स। अगर नंबर से हो जाता है, नहीं होता है, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द कैलकुलेटर एंड यू हैव टू स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टर 7 एंड यू हैव टू कीप चेकिंग, ठीक है। so this is the way to break down the numbers. Okay, let's now take one more number जो इन चीज़ों को लाइक से रिलेटेड हुआ, ऐसा कुछ नंबर लेते हैं। 8 7 2, suppose this is the number and you want to write the prime factorization form of this number. So now what I'm gonna do, just check this is divisible by 4 से तो डेफिनेटली है, 8 से है, 64 8 से भी है, ठीक है, बट 8 से थोड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। 9 से है, हाँ 9 से है, 9 से है, 11 से भी है। 11 से देखो करना आसान है तो 11 से करते हैं, पहले से 11 7। what I'm trying to do, I'm just trying to simplify our calculation, है ना। you can say I'm using here like divide and conquer approach also, कि like मैं एक नंबर ढूंढता हूँ तो उसको like उसको डिवाइड कर देता हूँ, है ना। like suppose मैंने इसे ढूंढ लिया, 11 का मल्टीपल है, then I break that number, so I am dividing here and like that technique also you can say we are using. So 77 and then 9, 99, and this is again divisible by 11, so 11 into 11 is 70. now easily हो गया, 8 9 होता है ना। so this is the prime factorization form of this number. now I hope you understood how to write prime factorization form of a number. you will not doing like this, है ना। इसका अगर देखो ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा and that will take time. you have to break the numbers and then write the prime factorization form of those numbers. So this is the way to do like prime factorization of number. And remember this technique, just practice few questions, you'll be able to do it faster. In initial in starting few questions when you were dealing, it might take time, you might find it difficult to do, but as you'll be keep practicing, this will get become easier for you. Okay, so speed will like come once you start practicing this method. So make sure whenever doing like वो habit छोड़ दो, focus on like breaking the number and then writing the prime factorization form of a number. Now let's come to the second thing, how to write factors of a number. So it's very important. Like this is suppose I have to write let's say 36 k factors. So don't write randomly like 1 6 3 4 9 36. ऐसे क्या हो सकता है, you might miss something, you might miss 1 or 2 factors and you have to also, you will be not sure of. So whenever you are write factor of any number, you have to write in this manner. So you have to write factors whenever you are writing factors of any number, write in this way. 1 6, ये देखो पेयर में आ रहे हैं, 2 18 3 12 4 9 5 नहीं होता है 6. This way you will not miss any factor. Suppose I have to write off 24, 1 2 3 4 2
3 4। ऑलवेज राइट फैक्टर्स इन दिस फॉर्म। जब भी तुम्हारे पास कोई लाइक ऐसा डीलेबल नंबर हो, है ना, अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नंबर हो जिसके लाइक 60-70 फैक्टर्स हों, उसको तो ऐसे लिखना ही नहीं है, उसमें नीड भी नहीं होगी, है ना। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो ऑलवेज राइट द फैक्टर्स इन दिस वे। लेट्स राइट फॉर 120, 120, 260, 40, 430, 524, 620 एंड 8 है, 8, 15, 9, देन 10 एंड 12 हो जाएगा। लास्ट फैक्टर यहाँ यहाँ की 10 एंड 12। So these are the factors. So this way you will not miss out on any factor. अब कुछ चीजें इसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो लिख लो, ठीक है। देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व। अब जैसे लाइक हमने एक चीज देखी, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर will always have, will always have odd number of factors, ठीक है, odd number of factors। any perfect number, any perfect square number will always have odd number of factors। एग्जाम्पल 36 तुमने देखा, 4 ले लो, जैसे 4 के देखो कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। 36 के कितने फैक्टर्स हैं, यहाँ पर हमने पीछे देखा, दिस यू कैन सी 9 फैक्टर्स, ठीक है। तो ऑल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल हैव ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। और जितने नंबर हैं सबके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, क्योंकि सारे पेयर में होंगे। देखो सारे नंबर पेयर में है, सारे नंबर पेयर में, लाइक इसका मल्टीपल देखो 24 बन रहा है, इसका 24 बन रहा है, तो सबका 24 बन रहा है, सबका 24। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ना, तो दैट्स वाई this will always have a odd number of factors। I hope this property is clear, so note down this thing। And second thing that you can observe, second thing that you can observe, let's take like 144 एक ले लेते example, 144, 272, 348, 4, 36 and 6 का कितना आएगा, 24, 7 से नहीं होगा, 8 आ जाएगा, 18, 9, 16, 10 नहीं आएगा, 12, ठीक है। देखो इसके भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ये सारे पेयर में आ जाएंगे और एक जो परफेक्ट जो उसका स्क्वायर रूट होगा ना वो बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करने वाली एक चीज है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 3, 3, 6, 6, 7 के टोटल 7, 14, 15 फैक्टर्स, है ना। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके टोटल फैक्टर सपोज 15 है, ठीक है। तो अब इसमें देखो इसके 7 फैक्टर्स, एक तो फैक्टर हो गया इसका स्क्वायर रूट, है ना। 15 फैक्टर्स है, उसके ऑड फैक्टर्स होंगे ऑलवेज, तो एक फैक्टर इसका हो गया इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 12। बचे कितने, 14 फैक्टर्स, 14 फैक्टर्स बच रहे हैं, है ना। सपोज एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके n फैक्टर्स हैं, अगर उसके n फैक्टर्स हैं तो उसका क्या होगा, है ना। अगर उसके n फैक्टर्स हैं तो एक तो फैक्टर उसका स्क्वायर रूट होगा और फिर उसको हटा दो तो n-1 बचेंगे। का एक फैक्टर जो होगा उसका स्क्वायर रूट, दैट इज सपोज एग्जाम्पल में 12 है, अगर मैं इसको हटा दूं तो n-1 फैक्टर्स बचेंगे, दैट इज 14 फैक्टर्स बचेंगे। अब 14 का हाफ कर दो 7, तो देखो 7 फैक्टर इसके स्क्वायर रूट से छोटे होंगे और 7 फैक्टर्स के स्क्वायर रूट से बड़े होंगे। नोट डाउन दिस पॉइंट, 7 फैक्टर इसके स्क्वायर रूट से बड़े होंगे और 7 फैक्टर इसके स्क्वायर रूट से छोटे होंगे। एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल हैव लाइक ऐसे ये n के फॉर्म में लिख लो जैसे तुम्हें लिखना हो, है ना। मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम अपने वर्डिंग में लिख लो कि उसके हाफ फैक्टर्स होंगे के स्क्वायर रूट से, ऐसे लिख सकते हो। एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल हैव हाफ ऑफ द फैक्टर्स ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट एंड हाफ ऑफ द फैक्टर्स लेस देन द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दिस इज द वे, ये तुम देख सकते हो यहाँ पर आधे फैक्टर उसके ज़्यादा हैं, आधे फैक्टर 12 से बड़े हैं, आधे फैक्टर 12 से छोटे हैं। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में है, ठीक है। अब नॉर्मली देखो, अगर तो 2 पॉइंट तुमने लिख लिए, एक तो परफेक्ट स्क्वायर में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे
और परफेक्ट स्क्वायर में आधे फैक्टर उसके स्क्वायर रूट से बड़े होंगे और आधे फैक्टर वो n-1 के बाद, ठीक है, आधे मतलब 15 है ना, तो 15 - 1 14 के बाद उस फैक्टर को छोड़ के, स्क्वायर रूट को छोड़कर जितने फैक्टर बचेंगे उसमें से आधे फैक्टर स्क्वायर रूट से बड़े होंगे और आधे फैक्टर स्क्वायर रूट से छोटे होंगे। आई होप एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो लाइक चलो एक बार मैं फिर से 36 से एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटा नंबर है तो समझ में आ जाएगा। 36 के से छोटा 16 ले लेते हैं, लाइक है ना, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बड़े पे तो लाइक अप्लाई कर सकते हो। 16 लेते हैं सर, लेट्स टेक लाइक वेरी स्मॉल नंबर, 16 2 8 एंड 4, है ना। तो 16 के देखो, 16 के सपोज एक नंबर है, उसके n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, n नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इज हियर 5, तो उसका स्क्वायर रूट है 4, वो एक फैक्टर हटा दो, रिमेनिंग फैक्टर स्क्वायर रूट वाले फैक्टर को अगर हटा दें तो बचेगा 4। अब जो 4 फैक्टर हैं इसमें से आधे फैक्टर 4 से छोटे होंगे, आधे फैक्टर से बड़े होंगे। दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब नॉर्मल देखो फैक्टर्स में क्या होता है, दो दो पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए लाइक परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड। और एक चीज देखो, नॉर्मली क्या है एक चीज की, लाइक कोई भी नंबर लेते हैं, लेट्स से 120, लेट्स से 120, तो 120 2 60 3 40 4 30 430 5 24 6 20 8 15 और 10 12, दीज आर द फैक्टर्स। अब देखो, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो ऑलवेज इवन होंगे, ऑलवेज इवन होंगे, है ना, ऑलवेज इवन होंगे। तो यू कैन सी हियर कि जो आधे लाइक आधे फैक्टर ऐसे हैं इसमें, नीचे देख लो लाइक, है ना, लाइक अगर ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे, अगर इस फैक्टर को मैं ऐसे लिखूँ, अगर 1 2 3 4 5 6 10 12 15, basically like I am telling you the placement of, you can say, these factors 40। तो अब ये फैक्टर्स तुम देख सकते हो, ये सारे इक्विडिस्टेंट है ना, इक्विडिस्टेंट मतलब इस साइड से, ये देखो ये सारे पेयर बना रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई कितना तुमको 120 दे रहा है, 120 दे रहा है। अब अगर सपोज क्वेश्चन में तुम्हें बोल दे, सपोज तुम्हें क्वेश्चन में बोल दे कि लाइक स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, है ना। अब जैसे क्वेश्चन में बोल सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 120 से छोटे, है ना, कोई नंबर है उसके स्क्वायर रूट से छोटे, उसके स्क्वायर रूट से लेस, सपोज 10 फैक्टर है, एंड देन क्वेश्चन आस्क्ड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। व्हाट विल द आंसर, आंसर विल बी 20, बिकॉज इसके स्क्वायर रूट से, अब देखो 20 के 120 के स्क्वायर रूट से छोटे कितने फैक्टर्स हैं 10, तो इससे बड़े कितने फैक्टर्स होंगे 10, सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 20। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स, है ना। पहला मैंने तुम्हें पॉइंट बताया कि लाइक जो प्राइम परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके फैक्टर्स ऑड होते हैं, ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। देन स्क्वायर रूट से इसके लाइक हाफ जो फैक्टर्स होंगे वो बड़े होंगे, हाफ फैक्टर्स छोटे होंगे, सेम ये लाइक तुम्हारा ये भी सेम ही चीज़ है, बस वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर देयर यू आर डीलिंग विद द इंटीजर्स, दोनों चीज़ें सेम है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। So two things we have learned: how to write prime factorization form, how to write factors, like way to write a factor, हमेशा फैक्टर ऐसे लिखना, रैंडमली मत लिखना, ऐसे पेयर में लिखना, so that you can use this thing। इसका भी आगे बहुत सारी चीज़ों में यूज होगा, and this is the way you will not miss any factors, fine। So this was the basic thing, was the basic thing and right thing to do basically। Now let's come to the like question part, so let's start first question that can be asked, that is find the number of factors, है ना। कोई नंबर दिया होगा, let's take example 72 and you need to find the number of factor of this। so first let me the formula, पहले मैं तुम्हें formula बता देता हूँ, है ना। let me just give you the formula, then I will explain कि formula कैसे आया है and how what is the approach and everything। जनरली बुक में तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा, क्लास में भी तुम्हें हर जगह डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा दिया जाएगा, बट नो वन विल टेल यू कि ऐसा क्यों हो रहा है,
एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक कैट जैसे एग्जाम के लिए सिर्फ तुम्हें फॉर्मूलाज पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो आई एम गोना टेल यू फर्स्ट द फॉर्मूला, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, सो दैट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन फाइन। So, if you have any number, first thing, write the prime factorization form of that number. Like suppose this is the prime factorization form of that number. So, number of factor of this number will be n1 plus 1, n2 plus 1, and n3 plus 1, so on. So like for example, let's take a number, let's take suppose 24. I am taking a small number so that आसानी से explain हो पाए, और अप्लाई तो तुम उसको किसी भी बड़े नंबर पर कर सकते हो, ठीक है। 24, तो 24 का प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म, लेट्स टेक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 120, एक जिसमें 3-4 फैक्टर, या फिर लेट्स टेक 120 से 120। तो 120 का प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म होता है 24 इंटू 5 ना, 4 इंटू 5, 8324 इंटू 5, दिस इज द, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कैसे होंगे, जो पावर में +1 किया है, तो इसकी पावर है 3 + 1, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो 1 + 1 and again 1 + 1. So number of factors of 120 is 4 into 2 into 2, that is 6. So this is the way to find the number of factors of any number. I hope this is clear. Very simple thing to do. Now let's understand the story behind this. ठीक है, कि बेसिकली कैसे तुम्हें करना है, हाउ गोना डील विद दिस थिंग। और दूसरे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लाइक इसमें देखो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, आसान सी चीज है। दूसरा लाइक एक और चीज पूछ सकते हैं, फाइंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, या फिर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, या फिर फैक्टर्स लाइक एंडिंग विद 0, फैक्टर्स एंडिंग विद 0, फैक्टर्स एंडिंग विद 5, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे वो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। अगर तुमने सिर्फ ऐसे पढ़ा है ना, कि सिर्फ ये फॉर्मूला, ये अप्रोच रट रखी कि ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन या फिर कोई नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू टू सॉल्व। तो लेट्स सी लाइक कि ऐसा कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्यों हमें इससे मिल रहे हैं, उस चीज को समझते हैं। तो लेट्स टेक सपोज वी हैव अ नंबर, लेट्स से let's take 36, 24 लेते हैं। लेट्स टेक अ नंबर, वी हैव 24 नंबर है हमारा, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 24 का प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म है this one, this is the prime factorization. Now I'm going to tell you like one thing, a representation that is the very very important to solve all the question that I have told, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तुम ऐसे सॉल्व, इवन आगे के फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स, वो सारी चीजें भी ऐसे ही डील करनी। तो राइट टू लाइक दिस, इसको देखो ऐसे लिखो, 2 to the power 0 से स्टार्ट करो, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। 3 to the power 0, 3 to the power n। आई होप ये समझ में आ गया, है ना। 0 से स्टार्ट करो और यहाँ तक लिखो। ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, ये वैसे तो है सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 20, दिस इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20, बट अगर ऐसे, इससे क्या हो रहा है देखो, 2 to the power 3 और 3 मैंने क्या किया, 2 to the power 0, 1, 2, 3 to the power 0, 3 to the power 1। ये बेसिकली तुम्हें क्या देने वाला है, दिस गोना गिव यू ऑल द पॉसिबिलिटीज, इन दोनों को यूज करके कितने नंबर्स बनाए जा सकते, दैट इज द नंबर ऑफ फैक्टर ना, कि लाइक 2 to the power 3 और 3 को यूज करके कितने नंबर्स बनाए जा सकते, दैट इज द फैक्टर, है ना। 6 है जैसे, 6 को लाइक 6 इज 2 into 3, इन दोनों को यूज करके, अब देखो इसका फैक्टर 1 भी है ना, तो इन दोनों को यूज करके तुम कितने नंबर्स लिख सकते हो, दैट इज द फैक्टर बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा, दिस इज गिविंग यू ऑल द पॉसिबिलिटीज, ये देखो ये सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हें दे रहा है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जितने नंबर्स मिलेंगे, दैट इज द योर फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो लाइक इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने 4 हैं,
इसमें कितने 2, दिस इज द 8, so 8 is the number of factors of 24. Okay, and one more thing. Now let's try to open this factor. Let's try to find individual factors also. Let's try to find individual factor. अब सपोज तुम्हें इंडिविजुअल फैक्टर निकालने, तो क्या करूँ, ब्रैकेट ओपन कर दूँ, 3 to the power 0, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 till 2 to the power 3, सारे लिख लेते हैं, प्लस 3 to the power 1, 2 to the power 0 till 2 to the power 3. ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो दिस यू विल गेट 1, this will get 2, 4, 8, this will get 3, this will get 6, this will get 12, this will get 24. So these all are the factors. Just check these all the factors of 24. 1, 2. Let's write all the factors of 24. That's why I've taken the small number so that we can like verify कर सके और अच्छे से समझ पाए. That's why I have taken the smaller number. So this you can see all the factors are there. 1, 2, 4, and you can see also equidistance सारे, वो सारे ऑर्डर में आ रहे हैं बिकॉज हमने ऑर्डर में किया है. So all the factors are present. So this is giving you all the factors. फाइन. अगर ये समझ में आ गया है कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आ रहे थे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, सारे कॉम्बिनेशंस जो आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज सारी आ जा रही है. तो तुम्हें अब जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो जस्ट तुम्हें देखना है इस ब्रैकेट में कितने नंबर हैं और मल्टीप्लाई कर दो, है ना. ब्रैकेट में कितने नंबर हैं, देखो ब्रैकेट में 4 नंबर है, इस ब्रैकेट में 2 है, और सपोज एक और होता, लेट्स से 5 होता, है ना, लेट्स से 5 या कुछ और 5 होता या कुछ भी होता, यहाँ पर सपोज 3 डिजिट्स होते, 3 नंबर होते हैं, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 आंसर आ जाता. आई होप यू गॉट दिस थिंग. ये बात समझ में आ गई होगी. अब डील करते हैं वो वाले क्वेश्चन. अब सपोज पूछता, पहला क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, नोट डाउन कर लो अपने नोट, नंबर ऑफ फैक्टर्स पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24. 24 के इवन फैक्टर्स. तो अब इवन क्या होता है, इवन नंबर कौन से होंगे, जिसमें तुम्हारा 2 हो, है ना. इवन फैक्टर्स वो होंगे जिसमें तुम्हारा 2 है. तो ये कैसे निकालोगे, अगेन अब यहां से देखो, यहां से देखो, अगर मैं अगर मैं ऐसे ब्रैकेट ओपन करता हूँ 2 to the power 0, ब्रैकेट ऐसे ओपन होंगे ना. अगर मैं 2 से ब्रैकेट ओपन करता हूँ इंस्टेड ऑफ 3, तो ऐसे ब्रैकेट ओपन होंगे, बोलो सारे ब्रैकेट ऐसे ओपन होंगे, ऐसे ब्रैकेट ओपन होगा. जब ब्रैकेट ऐसे ओपन हो रहा है तब तुम देख रहे हो इसमें ये वाला जो टर्म है, बाकी कितने टोटल 4 टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स आएंगे, है ना, ऐसे करके यहाँ पर आएगा 2 to the power 2 और 0, ये टोटल आएगा तुम्हारा पूरा इसका एक्सपेंड. इसमें देख रहे हो ये वाला फैक्टर, ये वाला जो टर्म है, इसको छोड़कर बाकी सब में 2 है. इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 2 से, तो अंदर 2 आ ही जाएगा ऑटोमेटिक, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, सब में 2 है. ऑल आर द इवन एक्सेप्ट दिस वन. तब तुम्हें क्या करना है, जस्ट इस वाले, इससे कितने टर्म आएंगे, 2, है ना, इसको बस एलिमिनेट करो. अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना है तुम्हें. यू हैव टू जस्ट रिमूव दिस थिंग. तुम्हें जस्ट ये वाला हटा देना है. अब कितने टर्म्स में बच रहे हैं, 3, इसमें कितने टर्म है, टोटल 6. देयर विल बी 6 इवन नंबर ऑफ फैक्टर. ये बात समझ में आ गया. आई होप दिस थिंग गॉट क्लियर. जस्ट अगर तुम ये 1 हटा दोगे यहाँ से, है ना, 2 to the power 0 1 होता है, अगर 1 हटा दोगे तो तुम्हारे जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, वो एलिमिनेट हो. अब ऑड निकालने हो तो लाइक टोटल से माइनस कर दो, या फिर अब ऑड के लिए देखो क्या करोगे, ऑड के लिए क्या करोगे, 2 to the power 1, 2, 3. ऑड में क्या होना चाहिए, ऑड में 2 नहीं आना चाहिए. तो 2 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है. तो अगर ये हटा देंगे तो कितना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, इस ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा, इस ब्रैकेट के अंदर 2 बचेगा. तो तुम्हें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आ गया, लाइक इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आ गया, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आ गया. आई होप दीज 3 थिंग्स आर क्लियर. नेक्स्ट थिंग लाइक सपोज 120 है तुम्हारे पास, 120. नाउ यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर एंडिंग विद 0. तुम्हें नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं जो 0 से एंड होते हैं. तो कैसे करोगे, तो 2 to the power 3, 24 into, you need to find the number of factors that are ending with 0. जब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करोगे,
सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा। यहाँ से 10 अलग कर लो, यहाँ से 10 अलग कर लो। तो अगर मैं 10 अलग करूँगा तो उसके लिए मुझे एक 2 और एक 5 हटाना होगा। तो मैंने यहाँ से एक 2 और 5 हटा दिया, यहाँ पर बचता है ये बचता है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम्हारे 3 2 2, तो देयर विल बी 6 नंबर्स, है ना, 6 नंबर होंगे जो 0 से एंड कर रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 ending with 0, this is the question, ending with, this is the, तो तुम्हें क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तुम्हें क्या करना है, 2 और 5 को अलग कर लेना है ना। अब देखो, अगर उसमें 0 से एंड होगा तभी होगा जब उसमें 2 और 5 होगा, अगर 2 और 5 नहीं तो पहली बात तो 0 से एंड नहीं होगा, है ना। तो इसमें 2 और 5 है तभी यहाँ पर 0 है। तो तुम्हें क्या करना है, 2 और 5 को अलग कर लेना है, बाकी जो नंबर बचता है उसका सिंपली नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेना है, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक और एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन, लाइक नंबर ऑफ फैक्टर्स, छोटा सा नंबर ऑफ 50, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50 एंडिंग विद 0, एंडिंग विद 0 में ये करना है। तो अब देखो इसको कैसे करोगे, मैंने छोटा इसलिए लिया ताकि लाइक हम इजिली देख पाए। 50 क्या होता है तुम्हारा, 2 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक 2 और एक 5 अलग कर दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5। तो 5 नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, 1 और 5 2 ना, 1 + 1 2 फैक्टर्स हैं। तो 50 के 2 फैक्टर्स होंगे, दैट विल बी एंडिंग विद द 0। चेक भी कर सकते हो, 150 225 510, 510 और 50, दीज आर द 2 फैक्टर्स दैट आर एंडिंग विद द 0। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंडिंग विद द 0, ये 4 चीजें समझ में। लास्ट थिंग तुम्हें खुद से पता करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर एंडिंग विद द 5। लेट्स टेक एनी नंबर, लेट्स टेक 70, find the number of factors of 70 that are, find number of factors of 70 ending with 5, ending with, ये होमवर्क है तुम्हारा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे सीट में भी होंगे, ये तुम्हें खुद से फिगर आउट करना है कि एंडिंग विद 5 फैक्टर्स कैसे। ओके, आई होप दिस गॉट क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द सम ऑफ द फैक्टर। तो वी हैव सीन लाइक नंबर ऑफ फैक्ट, पहले तो हमने क्या अभी तक समराइज अगर मैं करूं, तो फर्स्ट वी हैव सीन कि लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कैसे फास्टर लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कैसे हम फास्ट लिखेंगे। देन वी हैव सीन कि लाइक कैसे प्लेसमेंट ऑफ फैक्टर्स, यू कैन से प्लेसमेंट ऑफ फैक्टर्स हमने देखा। देन वी हैव सीन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एंड उसमें हमने देखा इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, एंडिंग विद 0, एंडिंग विद 5 तुम्हें खुद से करना है, और ऐसे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मैंने तुम्हें अप्रोच बताया उससे यू कैन फाइंड एनी दिस, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन टिल नाउ। नाउ लेट्स सी द सम ऑफ द फैक्टर। तो वो जो मैंने अभी फॉर्म बताई थी ना, वही हम यूज करके सम ऑफ द फैक्टर्स निकाल लेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल 24। सपोज यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखो, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। देन ये वाला फॉर्म जो मैंने तुम्हें बताया था, दिस फॉर्म बेसिकली इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, है ना, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। तो दिस इज द वे। अब व्हाट यू कैन सी हियर दैट दिस इज अ जीपी, ये तुम देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज अ जीपी। फर्स्ट टर्म इज हियर 1, जीपी है ये तुम्हारा, फर्स्ट टर्म इज 1, एंड कॉमन रेशियो बोलते हैं ना, कॉमन रेशियो इज 2, एंड जीपी का फॉर्मूला होता है a r⁻n−1/r−1। अब ये लाइक जो नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड है उन्हें लग रहा होगा ये मैं क्या बता रहा हूँ, बट ये 10th क्लास में रहा है डेफिनेटली, तो आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं पता है, यू डोंट नीड टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, कि जीपी क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम भूल गए हो, विल डू इन द अलजेब्रा। राइट नाउ आई एम गोना गिविंग यू द फॉर्मूला, जिसे पता है, ठीक है, जिसे पता है दैट्स ग्रेट, नहीं पता है तो आई एम गोना, अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखा दूंगा, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं, इसको तो ऐसे ही ऐड कर सकते हो, मैनुअली ऐड कर सकते हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसको तो मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, 8 4 12, 12 एंड 12 15 आ जाएगा ये, है ना। और ये कितना आ जाएगा 4, तो 60। सम ऑफ फैक्टर ऑफ 24 60। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ से देखो चेक भी कर सकते हैं। तो ये 10 आ रहा, 11 आ रहा, 3 आ रहा और 10 आ रहा, ठीक है। अब इसका मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है वो इसे याद कर सकते, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। एन इक्वल टू प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म लिखोगे, दैट इज पी एन वन टू एंड सो, दिस इज द प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म। तो अब इसका समीशन, सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, फैक्टर्स ऑफ एन विल बी, फॉर्मूला देखो अगेन, ये फॉर्मूला तुम्हारा सम ऑफ जीपी से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। जिसे पता है वो समझ लो, जिसे नहीं पता है वो अभी के लिए याद कर लो, अलजेब्रा में हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये कैसी जीपी बनेगी, ऐसे जीपी बनेगा ना, P1 से स्टार्ट होगा, से स्टार्ट होते हुए कई लाइक समीशन का फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, समीशन वाला फॉर्म। ये देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला, ऐसे याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला फॉर्म है, ये समीशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन का फॉर्म है, ठीक है, ऐसे। टू वन टिल पी, अब ये जीपी बन रहा है तुम्हारा, है ना। तो इस जीपी फॉर्मूला देखो क्या है, दिस इज जीपी, ये वन हो जाएगा, किसी भी टर्म का पावर अगर जीरो है तो वो वन हो जाएगा। तो हेयर फर्स्ट टर्म इज वन, तो ए, अगर जिसको नहीं पता है जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। और फर्स्ट टर्म तुम्हारा आर क्या है, तुम्हारा आर P1 है। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 से n1 तक है और ये जीरो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n1 प्लस 1 है, द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड दिस इज P1 माइनस 1। So for this one, if you apply here geometric progression, sum of geometric progression, so here you will get P2 to the power N2 plus 1, and this is minus 1, and this will be P2 minus 1. So on, like अगर यहाँ पर P3 आ जाएगा, then you will put like P3, जो भी terms आते जाएंगे you will be keep adding on. So this is the formula for the summation of sum of the factors of any number, है ना। समझ में आ गया क्या है, लाइक देख लो फिर से एक बार, मैं यहाँ से तुम्हें याद करने का तरीका बता देता हूँ डायरेक्टली। जिसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता है, डोंट नीड टू मेमोराइज, तुम अपने आप कर लोगे। अगर तुम्हें नहीं पता है देन दिस आई एम टेलिंग यू अ वे टू मेमोराइज दिस थिंग, ठीक है। देखो ये P1 है ना, P1 पावर में प्लस वन करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, तो वही इसकी पावर में प्लस वन कर दिया और माइनस वन कर, और सिंपल P1 माइनस वन अपॉन कर दिया। और यही पैटर्न आगे हम रिप्लीकेट करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दिस विल गिव यू द सम ऑफ द टर्म। अब एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक अ नंबर, लेट्स 30 लेते हैं, है ना। लेट्स टेक 30, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखा नहीं देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना, या फिर लाइक नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, लेट्स टेक इट हियर, लेट्स, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला ही अप्लाई करके देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो कि लाइक फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे। लेट्स टेक अ नंबर दैट इज 30, लेट्स टेक 30 एंड 30 120 लेते हैं, लेट्स टेक 120 एंड इफ यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो 120 is 2 to the power 3 into this is 5, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो दिया हुआ था प्लस वन करना है ना, प्लस वन, पावर में प्लस वन और माइनस वन, और नीचे सिंपल रहेगा ये प्राइम फैक्टर, पावर में प्लस वन करना है, पावर वन थी तो वन प्लस वन कर दिया, और ऐसे। ये मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हें रटने का तरीका बेसिकली मैं बता रहा हूँ, माइनस वन जस्ट ऐसे करते जाना, दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये तुम्हें सम ऑफ फैक्टर्स दे देगा, ठीक है। देखने में डिफिकल्ट लग सकता है बट ये बहुत ही सिंपल है। 15 एंड 9 माइनस वन, 9 माइनस वन 8, 8 2 दैट इज 4, एंड 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 24 24 4 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 15 4 जा 60 360 आई थिंक,
देख लेना कैलकुलेशन, क्योंकि इसको कैसे ब्रेक करोगे, 15 4 इंटू 6 ना, 15 4 इंटू 6, 15 4 जा 60, 60 360। आई होप यू गॉट द क्लियर कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे, तो ये चीज क्लियर है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एंड अब तुम्हें देखो फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। मैं तुम्हें वो बता दिया है कि लाइक कैसे लिखोगे पैटर्न, है ना। डायरेक्टली एग्जाम में कोई भी नंबर आ जाए, लेट से 144, तुम क्या करोगे, दिस इज लाइक 16 9 होता है, ठीक है। अब क्या, अच्छा मैं ये सब चीज़ जल्दी जल्दी क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना इनफ, तो ये नंबर्स तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि नंबर बार बार रिपीट करो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नंबर नहीं आएगा एग्जाम में, बिलीव मी। दे डोंट वांट यू टू डू द कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन का एग्जाम नहीं है कैट, और जरा सा भी डिफिकल्ट हो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, सिंपल, ठीक है। अब जैसे ये है, तो इसको क्या करोगे, अब मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, तुमने पैटर्न अगर याद कर रखा है, पैटर्न याद कर रखा है, तो क्या करोगे, पैटर्न से 4 + 1 - 1। ये मैं लाइक जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, 2 + 1 - 1, जस्ट तुमने पैटर्न याद कर रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। सो दिस इज द सम ऑफ द फैक्टर्स, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, और ये स्टेप्स या फिर ये पैटर्न याद कर लो कि ऐसे सम ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सम ऑफ द फैक्टर। आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। दूसरी चीज आ गई है, अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंडिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो, सम ऑफ फैक्टर्स एंडिंग विद 5। ये तो लाइक एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट वो कोई नई चीज पूछ सकते हैं। अगर तुम्हें बेसिक चीज पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, यू कैन इजिली डील विद दिस टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब इवन वाली बात कर लेते हैं। इवन ऑड मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाकी ये दोनों तुम्हें खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये दोनों तुम्हें खुद से सॉल्यूशन पर रीच करना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में दे कैन आस्क समथिंग न्यू, है ना। और ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें डिड्यूस करनी है। देखो कैट एग्जाम इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी। लाइक जैसे तुमने अभी तक बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, है ना, अपने कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो, तो वो प्रिडिक्टेबल पेपर है कि लाइक इतना सिलेबस इसी से क्वेश्चन आएंगे और कुछ बाहर का नहीं आता। कैट में क्या है कि लाइक यू विल गेट, जो तुमने पढ़ा है उससे कुछ नहीं आने वाला है ना। यू हैव टू डील विद दैट, यू हैव टू डेवलप दैट स्किल, दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस जो लाइक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। तुम्हें नई चीज़ के साथ डील करना आना चाहिए, तो दैट यू विल डेवलप ऑन जब तुम अपने आप चीज़ें करोगे। तो मैं तुम्हें लाइक पहले चीज़ें बता रहा हूँ, देन यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट। तो सपोज लेट्स टेक, छोटा ही नंबर लेते हैं ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। लेट्स टेक 72, ठीक है, 72। अब इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम निकालना है, तो 2 टू द पावर कितना होता है, ये 8 9 होता है ना, 8 9। तो ये 3 तक जाएगा और ये तक जाएगा। इसके इवन फैक्टर्स का सम निकालना है, ठीक है। इवन फैक्टर्स का सम निकालना है, तो जस्ट अगर हम ये वाला हटा दें, तो जो सारे फैक्टर्स बचेंगे वो इवन बचेंगे। या फिर और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज ये 3 × 3 है ना, ओपन करने में दिक्कत होगी, 24 ही लेते हैं, 24 लेते हैं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि मैं छोटे नंबर क्यों ले रहा हूँ, ताकि वी कैन सी इट, है ना, हम देख पाए कि ऐसे वर्क कर रहा है। बाकी सेम चीज़ तो बड़े नंबर पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो लेट्स टेक 24, है ना। तो 24 क्या होता है, 2 टू द पावर 3 इंटू 8 इंटू 3 ये होता है। दिस इज 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, पावर 2, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1। This is there. Now you need to find sum of even factors, sum of even factors का सम निकाल। तो क्या करोगे अब, अगर मैं इसको हटा दूं, अभी हमने पीछे देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो अब सारे देखो इवन फैक्टर्स बचेंगे, सारे इवन फैक्टर्स। कैसे, देखो मैं ब्रैकेट ओपन करके देखता हूँ कि सच में सारे आ रहे हैं या नहीं। अब तुम्हें दिख तो रहा होगा, ऑटोमेटिक आएंगे सारे, है ना, क्योंकि सब में 2 आएगा ना, सब में 2 आएगा। दैट इज 2, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1। कैसे भी ओपन कर सकते हो, इस साइड से भी ओपन कर सकते थे, इधर से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सब में 2 है, सारे फैक्टर इवन ऑटोमेटिक आएंगे।
बस इससे आ रहे थे ऑड वाले, है ना। इससे देखो क्या आ रहा था, इससे ऑड वाले फैक्टर्स आ रहे थे। तो ये 1 हो जाता ना, तो ये 1 और 3 ये दो फैक्टर ऑड आ जाते, तो जस्ट हमने वो पार्ट रिमूव कर दिया है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। दिस इज 2, दिस 6, दिस 4, दिस इज 12, दिस इज 8 एंड 20। 24 के जरा फैक्टर्स लिख के देखते हैं। 1, 24, 12, 3, 8, 4, 6, है ना। इतने ही फैक्टर्स हैं, है ना। 6, 4 रिपीट करने लगा। अब देखो एक इसके अलावा सारे फैक्टर्स हैं, 2 है, 6 है, 4 है, 12 है, 8 है, ऑल द आर द इवन फैक्टर। तो दिस विल गिव यू द सम ऑफ द इवन फैक्टर। अब देखो ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया कि ये, मैं इसे हटा देता हूँ, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया कि ऐसे करके सारे इवन फैक्टर्स आ जाए। ऑड फैक्टर्स कैसे आएंगे, सारे 2 हटा दो, है ना। ये 1 वाला सिर्फ पार्ट रखें, ये वाला पार्ट हटा देंगे, विल रिमूव दिस पार्ट, वी विल रिमूव दिस पार्ट, ये वाला पार्ट हटा देंगे, तो सारे हमें ऑड फैक्टर्स मिल जाएंगे, उनका सम आ जाएगा। तो अब देखो अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला याद करोगे ना सम ऑफ फैक्टर्स का, देन प्रॉब्लम होगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर। बट अगर तुमने समझा है, इफ यू हैव अंडरस्टूड हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स, देन यू कैन इजिली सॉल्व द। तो अब इसको करना होगा हमें, तो बेसिकली ब्रैकेट ओपन करके थोड़ी करेंगे, है ना, ऐसे। नाउ यू कैन अप्लाई हियर जीपी। अब इस पे जीपी अप्लाई करोगे, जीपी का फॉर्मूला हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू डू इजिली। अभी बुक में जो क्वेश्चन मिले उनको मैनुअली कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको अगर मैनुअली कैलकुलेट करोगे, 8 to 10, 14 और 4, ठीक है। अभी तुम मैनुअल कैलकुलेशन कर लो ऐसे क्वेश्चंस में, और बाद में हम वी विल स्टडी अलजेब्रा, देन आई विल टीच यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तब आगे से तुम्हें इसमें जीपी वगैरह अप्लाई करना। अभी के लिए जस्ट डू द मैनुअल। Fine. I hope now you understood how to find the sum of the factors, how to find the sum of even factors, how to find the sum of odd factors. Odd factor automatic हो गया, odd ये cancel करके निकाल लो, odd आ जाएगा। Okay. So now the like remaining concepts, product of factors and all these concept we'll do the next session. And I hope you guys like the session. So make sure you join the Telegram channel for updates. I have like given the link in the description of this video. अगर link work नहीं करता है, you can just search cat race in the Telegram and you'll get the channel link. Subscribe to this channel, and that's it for today. Let's see you in the next video.